Hello, dear students. Today we are going to learn the first chapter of your supplementary reading of 9th standard from the book Movements. The title of the chapter is The Lost Child. Now, from the title itself, we understand the story might be given in such a way by the writer that he is trying to make it very clear from the title itself that the child in the given story is lost. Now, the question is he really lost in the story or not? Now, in the beginning, an introduction is given. A child goes to a fair with his parents. Okay, he is very happy and excited also, utsayona, and wants the sweets and the toys. He is expecting to purchase some sweets, some toys, which are displayed, are shown, or are presented. Okay, there in the shops or on the different type of the places, but his parents don't buy them for him. He's expecting everything to be bought, but unfortunately his parents do not buy it, don't buy it. Now why they don't buy it? Because the child might be thinking something specially about his parents, what he knows about his parents. That is very important. पेरेंट्स के बारे में ऐसा बच्चा पहले से क्या क्या जानता है. Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन जब जो चीजें, all the things which are refused by his parents, then the same things are asked by somebody else. वही चीजें जब दूसरा व्यक्ति उसे पूछता है, कोई और व्यक्ति, अनजान व्यक्ति उसे पूछता है कि बेटा तुम ये सब चीजें लेना चाहोगे, then why does he refuse it? तो वो refuse क्यों करता है? क्या है ऐसा कि वो ये सब चीजें खरीदना नहीं चाहता है? Let us find out the secret in the story. It was a festival of spring. Spring का फेस्टिवल था. स्प्रिंग के सीजन में एक त्योहार था. From the wintry shades of the narrow lanes. विंटर का सीजन, अंधेरा छाया हुआ है और छोटी छोटी गलियां, lanes, small type of the place which is between the two houses or between the two lanes, you can say, or the two rows of the houses, you can say, better way, and alleys, that is the streets or the roads, emerged, are found, are seen, a gaily clad humanity, gaily, one who is very happy, और पूरा का पूरा गांव पूरी तरह से खुश है, clad, come together, और सबके सब ह्यूमैनिटी को, यानी कि इंसानियत अपने छाते के नीचे, कोट के नीचे या अलग अलग जगहों पर बैठकर सब इंसानों का भीड़ एक साथ में निकल पड़ा हुआ है. Some walked, some rode on the horses. सब कुछ लोग चल के जा रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे. Others sat, being carried in the bamboo and bullock carts. कुछ लोग बैठे हुए थे, खास करके बुलक कार्ट्स के अंदर जो बैम्बू की बनी हुई है, बम्बू की लकड़ी की बनी हुई है. One little boy ran between his father's legs. और एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पापा के पैरों के बीच में से यानी कि उनके बगल में वो हाथ पकड़ के अपने पापा के और मम्मी के बीच में, ओके, बहुत खुश होकर, ब्रिमिंग, फुल ऑफ, ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जैसे उसके अंदर जिंदगी आ गई हो, एक नई जिंदगी देखने को मिलने वाली है, और बहुत खुश था वो. ये रहा वो बच्चा, अपने मम्मी पापा के साथ है, मेले में जा रहा है, पूरा गांव मेले की तरफ जा रहा है ना. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. बीच बीच में ये सेंटेंस आपको बहुत बार मिलेगा देखने को. कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड. जैसे बच्चा पीछे रह जाता था तो उसके पेरेंट्स तुरंत उसको, चलो बेटा जल्दी चलो, थोड़ा फटाफट निकलते हैं, जल्दी पहुंचते हैं. Fascinated, attracted by the toys in the shops that lined the way. पीछे क्यों रह जाता था बच्चा? पीछे दुकान में किसी जगह पर बहुत सारे खिलौने रखे थे. Many toys were there in the shops that lined the way. That is, all the different shops are full of the toys. In the same line, there are different toys, and the child is looking at all those toys very carefully and is expecting what? To buy them. इनको खरीदना है उसे, इच्छा है उसकी कि वो भी खिलौनों के साथ खेले थोड़ी देर के लिए. He hurried towards his parents.
और जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं तो वो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ता है. His feet obedient to their call. बड़ा ईमानदार बच्चा है. ईमानदारी की वजह से वो वैसे ही, जैसे टीचर डांटते बच्चे को तो वो तुरंत वैसे ही करता है जैसे कहा जाए, वैसे ये बच्चा भी अपने पेरेंट्स का बड़ा ओबीडियंट है. जैसे वो बुलाते हैं वो तुरंत भाग पड़ता है उनके पीछे. His eyes still lingering on the lingering are still on the, yes, lingering means is thinking still or looking at the toys still. He is with his parents. जब तक वो अपने पेरेंट्स तक पहुंचता नहीं तब तक उसकी आंखें उन खिलौनों पर ऐसा पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है. ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जहां पर वो टॉयज रखे हुए हैं, रिसीड किए हुए हैं, रखे हुए हैं, उन पर उसका ध्यान है. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप, और वो बिल्कुल वहां पर जाकर पहुंच जाता है उसके पेरेंट्स के पास जहां पर उसके पेरेंट्स रुके हुए थे. टू वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करें. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके दिल में एक आइडिया जग उठी थी. किस बात की? कि खिलौने मांग लेता हो एक बार, और वो उसे दबा नहीं पाया, उस आइडिया को अपने सीने में दबा नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड, उसको अच्छे से एक बात पता है कि हमेशा की तरह पहले से ओल्ड टाइप का एक मेथड है उसके पेरेंट्स का कि वो बहुत भयंकर तरीके से उसे देखेंगे, आंखें फाड़ के डांटेंगे, ऐसा करके. कोल्ड स्टेयर ऑफ रेफ्यूजल इन देयर आईज, कोल्ड स्टेयर, लुक इन अ वेरी एंग्री वे, और वो मना कर देंगे उसे, रिफ्यूज करेंगे. ये उसे अच्छे से पता है, फिर भी सोचता है मांग के देखता हूं, बाय चांस मिल जाए. और गलती से उसने मुंह से वो लफ्ज निकाल दिए. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही रिक्वेस्टेड, ही प्लीडेड. जैसे ही उसने सोचा था, जो सोचा था, क्या वैसा हुआ? देखो क्या हुआ. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, बिल्कुल वैसे ही. उसको पता था कोई गुस्से में देखेंगे, उसके पापा गुस्से से देखते हैं. इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, जैसे कोई एम्परर किसी पर अन्याय कर रहा हो, ऐसे, जिसके बारे में वो वाकिफ है. ही इज वेल नोन अबाउट दिस, दैट इज फैमिलियर विद हिज आइडियाज, विद आइडियाज ऑफ हिज फादर. और ये टायरनी के मैनर में, गुस्से वाले मैनर में जैसे कोई देखता है, वैसे मैनर में उसके पापा ने देखा. उतने में मदर्स, जो बहुत पोलाइट होती है नेचर के, जो अपने बच्चों को अच्छे से संभालना जानती है, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर. उसकी मदर आज एकदम खुला आसमान और एकदम पोलाइट जैसा लग रहा था. टेंडर मीन्स पोलाइट, सॉबर, वेरी सीरीन वन. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और मम्मी ने देखा कि आज थोड़ा सा फ्रीडम मिला है, फ्री स्पिरिट, अपने आत्मा को थोड़ा सा शांति मिल सकता है, ऐसा दिन है आज. इसलिए तुरंत उसने अपनी उंगली आगे करके बच्चे को बुलाया और कहा, सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू. बेटा तेरे सामने तो देख, वो खिलौने छोड़ना, क्या उन खिलौनों के पीछे लगा हुआ है. सी व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट वाज इट? इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड के फील्ड थे जो बहुत खूबसूरत फूल उगते हैं. पेल लाइट मेल्टिंग गोल्ड. पेल मीन्स अ लिटिल बिट डल, ओके, जैसे पिघल रहा हो, जैसे गोल्ड पिघल रहा हो, क्योंकि वो हिल रहे थे ना पेड़, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो मेल्ट हो रहा हो, पिघल रहा था. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, दूर दूर तक आपकी नजरें, यस, पहुंच नहीं सकेगी, ऐसे दूर तक वो माइल्स एंड माइल्स के डिस्टेंस पर ये सब एक साथ में मस्टर्ड के फील्ड्स उगकर लहरा रहे थे. अब क्या होता है, बच्चा बहुत खुश हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे पापा की डांट से, लेकिन उतने में मम्मी ने कुछ समझाया तो वो अपने आंसुओं को निगल गया. आंसू निकले ही नहीं उसके. A group of dragonflies were bustling, moving faster. About on their gaudy purple wings, एकदम दुबले पतले, gaudy means very thin, transparent के जैसे, पर्पल कलर के विंग्स थे, ड्रैगन फ्लाइज थी, हवा से लहराती हुई, उड़ती हुई ऐसी जा रही थी. ओके, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई. बीच बीच में कोई ब्लैक बी, बड़ी होती है ना, भौरा जिसको बोलते हैं, ओके, भंवर होते हैं जो फूलों के ऊपर मंडराते हैं हनी कलेक्ट करने के लिए. ऐसे बड़ी ब्लैक बी और बटरफ्लाई, या तो फिर बटरफ्लाई, ओके, जिनके बीच में से ये
ड्रैगन फ्लाइज उड़कर यस क्या ढूंढने के लिए जा रहे हैं? इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर. स्वीटनेस हियर हनी, हनी नेक्टार शहद होता है ना जो मीठा लगता है, उसे ढूंढने के लिए ये सब उड़ रहे थे फ्लावर्स में से इकट्ठा करने के लिए. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. बच्चा ऐसा देखता है उनको. गेज GAZD टू स्टेयर, टू लुक, टू सी, टू ऑब्जर्व. ओके. और हवा से उनको लहराते हुए जब देखता है तब तक देखते रहता है टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट. उनमें से कोई अपने पंखों को शांत करके बैठ जाएगा और तब जाकर इसे वो पकड़ेगा. ओके. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग. लेकिन जैसे वो पकड़ने जाता है तुरंत वो हल्के से वहां से उड़ जाते हैं. फ्लटर करना, मूव करना, अपने विंग्स को यस जोर जोर से मूव करना. फ्लैपिंग दैट इज द मूवमेंट ओनली ऑफ द विंग्स अप इनटू द एयर. फ्लटरिंग में एक्चुअली आवाज आती है और फ्लैपिंग में विंग्स को सिर्फ मूव करते हैं. When he had almost caught it, लगभग उसने पकड़ ही लिया था लेकिन पकड़ने के पहले वो उड़ गए in his hands. Then his mother gave a cautionary call. और तुरंत उसकी मम्मी जैसे किसी को यस पहले से कॉशनरी करते हैं. कॉशनरी मतलब किसी को पहले से ही सावधान करना. और उतने में मम्मा कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ. चल बेटा जल्दी चल. ओके चल मेरे साथ चल. अब तो रास्ता बदलना है हमें, फुटपाथ आ चुका है. He ran towards his parents happily and walked abreast. Abreast means दोनों के बीच में, मम्मी और डैडी के बीच में. Okay, in between, at the middle of them for a while. कुछ समय के लिए चलता है, बाद में वापस पीछे रह जाता है. कुछ ना कुछ नाटकबाजी चलती रहती है. However, soon left behind. वापस पीछे रह गया. Attracted by the little insects and the worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और वो पीछे क्या करता है? फुटपाथ पे से ओके जो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स बाहर निकल कर आ रहे थे, बाहर निकल कर आने के लिए क्या वर्ड है? टीमिंग. ओके कमिंग आउट. ओके एज इफ दे वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस. उनके बिल में से बाहर निकल कर आ रहे हो. ओके और फिर उसके बाद उनके साथ वो खिलते बैठता है. क्यों बाहर निकल कर आ रहे थे? टू एंजॉय द सनशाइन. उनको भी सनशाइन चाहिए, उनको भी वार्मनेस चाहिए. ठंडी थी. और उतने में मम्मी पीछे से आवाज लगाती हुई कम चाइल्ड कम. His parents called from the shade of a grove. एक बगीचा था, बगीचे में वहां पर उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे. ओके बगीचा इन सेंस पेड़ों का बगीचा था कोई भी. Where they had seated themselves. जहां पर उसके पेरेंट्स जाकर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठे हुए थे. एक कुआं था उसके किनारे पर, बॉर्डर पर थोड़ी दूरी पर. एज मीन्स बॉर्डर. He ran towards them. और तुरंत बच्चा उस फुटपाथ से निकलकर ग्रूव में चला जाता है. नाउ यहाँ पर क्या होता है? A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. ग्रोव के अंदर जैसे वो एंटर होता है जैसे फूलों का बारिश हो रहा हो. फूलों की बारिश उसके ऊपर, हल्के हल्के फूल उसके इस शरीर पर गिर रहे हो. And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और अपने पेरेंट्स को पल भर के लिए भूल जाता है और अपने दोनों हाथों में ऐसे वो इस पंखुड़िया जो है, पेटल्स जो है, फूलों की जो इस पंखुड़िया होती है, उनको वो हाथों में इकट्ठा कर रहा था. ठीक है एकदम शांत एनवायरनमेंट था. चुपचाप आगे जा रहा था. ओके शांति से उन पेटल्स को इकट्ठा करते 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 वाओ कैसे अचानक से क्या हुआ? डर गए. ऐसा ही वो भी डरा था. But lo, he heard the cooing of the doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" घबरा उठा और वो पल भर के लिए अपने हाथों से सब कुछ छोड़कर पेरेंट्स की तरफ भागा. तो वो भूल जाना, उसके हाथ कुछ भूल गए. फॉरगॉटन हैंड्स कभी फॉरगॉटन नहीं होता है, लेकिन पल भर के लिए वो उसके हाथों से जो कुछ छूट गया, इसके लिए राइटर ने यहाँ पर फॉरगॉटन हैंड्स यानी कि इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं. हैंड्स कभी फॉरगॉटन नहीं हो सकते हैं, हाथ कभी भुलक्कड़ नहीं होते हैं. इंसान भुलक्कड़ होता है, लेकिन इंसान की क्वालिटी हैंड्स को दे दी गई, इसलिए वो यस फॉरगॉटन हैंड्स कहा गया है. Why am I explaining? Because in the exercise you will be given the same question. Okay? हाथों से वो सब कुछ छूट जाता है. Come child, come. They called to the child. बच्चे को वापस बुलाया. Who had now gone running in the wild capers round the banyan tree. Banyan tree, बनियान नहीं,
बैनियन बोलते हैं उसको। बैनियन ट्री के आसपास में जो केपर्स हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे जो नीचे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, उनके बीच में से भागता हुआ, मजे लेता हुआ, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और फिर बच्चों को वहां से यस निकालते हुए वो छोटे से रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। वाइंडिंग फुटपाथ, मुड़ता हुआ फुटपाथ है, which led to the fair through the mustard fields, और फिर वो रास्ता सीधा मेले में जाता है। मस्टर्ड फील्ड से निकलता है और मस्टर्ड फील्ड से सीधा निकलकर एंड तक, दूर दूर तक कहां पर फैला हुआ है? इट इज स्ट्रेट इन द फेयर। फेयर मतलब मेला ना। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. लोगों का एक समूह, एक ग्रुप। जैसे जैसे वो उस छोटे से विलेज की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर ये मेला लगा हुआ था, बच्चे को सामने क्या नजर आ रहा था? यस, फुटपाथ्स पर सब जगह से लोग अलग अलग प्रकार के यस सज धज कर मेले की तरफ बढ़ रहे हैं। कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर। वर्लपुल मतलब जहां पर सब कुछ एक भीड़ लगी हुई है, ओके। और उस मेले के अंदर जो भीड़ लगी हुई है उसकी तरफ वो सब लोग जा रहे थे और एक साथ में इकट्ठा हो रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड। रिपेल्ड थोड़ा सा डर महसूस करना, फैसिनेटेड अट्रैक्शन बढ़ना, दोनों हो रहा था उसको। एक उससे डर भी लग रहा था कि पहली बार इतने बड़े भीड़ में जा रहा हूं, और अट्रैक्शन भी बढ़ रहा था। किस बात का? कि मेले में इतने सारे लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो यस मजा लेने को मिल ही जाएगा। बट ही वॉज repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. ये जो दुनिया थी ये उसके लिए अनजान दुनिया थी, और इस अनजान दुनिया के सामने जहां पर वो एंटर होने जा रहा था उसके लिए ये सब कुछ अनजान था ना। अब यहाँ से स्टोरी सब जन ध्यान से समझना, ओके। कौन कौन से व्यक्ति को वो मिलता है मेले में घुसने के पहले, और मेले के घुसने के बाद उसके साथ क्या होता है ये चेक करना है। सबसे पहला है स्वीट मीट सेलर। स्वीट मीट एक्चुअली कब यूज करते हैं? जब हम किसी स्वीट के ऊपर कुछ पत्ते या किसी विशेष प्रकार का चमकीला पदार्थ डालते हैं तो उसको सजाते हैं, तो उन स्वीट्स को स्वीट मीट कहते हैं, ओके। और ऐसी चीजें बेचने वाले को स्वीट मीट सेलर कहते हैं। हॉक्ड, हॉकिंग मीन्स चिल्ला चिल्ला कर चीजों को बेचने वाला, ठीक है। पहला स्वीट मीट सेलर क्या क्या बेच रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। कहां पर था वो? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रांस, जहां पर उस मेले का एंट्रांस है, जहां पर दरवाजा है उसके कोने में। एंड अ क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। वहां पर लोगों की भीड़ एक साथ में जमा हो गई है काउंटर के ऊपर, खास करके उस व्यक्ति के पास में, एट द फुट ऑफ एन यस एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। रंगी बिरंगीन स्वीट्स बनाने वाले के यस उस आर्किटेक्चर के आसपास में लोगों की भीड़ लगी हुई है। डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड, और सिल्वर और गोल्ड के पत्तों से ये सब स्वीट्स सज धज कर रखे हुए हैं। The child stayed open-eyed and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. बच्चे का घुर्रा घुर्रा के उस बर्फी को देखना और मन में चाहत बढ़ना, खास करके उसका फेवरेट स्वीट था वो बर्फी। और मन ही मन बेचारा एक चीज सोच लेता है, मुंह में पानी आ गया था उसके, ओके। माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। हल्के से उसने मुंह से बड़बड़ाया कि मुझे वो बर्फी चाहिए, लेकिन उसको आधा एक चीज पहले से ही पता है, आधी कम से कम आइडिया पता है। कौन सी आधी आइडिया पता है? कि शायद उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे। एज ही बेग दैट हिज प्ली, जैसे वो रिक्वेस्ट करेगा, बेग करेगा, तो इसका उसका ये जो प्ली है, उसका ये जो रिक्वेस्ट है, would not be heeded, would not be accomplished, पूरा कभी नहीं होगा। उसका ख्वाब जो है बर्फी खाने का वो कभी पूरा नहीं होगा। उसे अच्छे से आधा तो इतना तो पता है उसको, लेकिन पूरा कब पता चल जाएगा? जब उसके पेरेंट्स सही मायने में उसको बर्फी लेकर नहीं देंगे या कुछ ऐसा सुनाएंगे, शायद बच्चा अंदर से टूट के बिखेर जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्या लगा बेचारे को, खास करके उसके पेरेंट्स, खास करके उसके पापा उसे क्या कहेंगे?
कितना ग्रीडी है तू। अभी छोटा सा बच्चा है, मेले में लेकर गए हो तो खिलाओ ना उसे, खेलने दो उसको। लेकिन उसको ये पता है कि उसके पेरेंट्स सिर्फ घुमाने के लिए लेकर गए हैं, कुछ खरीदना नहीं, कुछ खाना नहीं है। और उसके पेरेंट्स शायद उसे क्या कह देंगे, बड़ा लालची है, खाने के बारे में सोचते रहता है। एंड सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। बड़ा टचिंग है ये। बिना आंसर का रिप्लाई सुने बेचारा चुपचाप अपने पेरेंट्स के साथ आगे चल पड़ता है। दूसरा व्यक्ति, फर्स्ट स्वीट मीट सेलर, सेकंड अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, फ्लावर्स की माला या फिर फ्लावर्स बेचने वाला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर। बता दो आपको, गुलमोर के पेड़ के ऊपर जो फूल खिलते हैं वो साल में एक ही बार खिलते हैं, और इस गुलमोर के सादे सिंपल फूल होता है, उसकी माला बनाकर कोई व्यक्ति बेच रहा है। ओके, फ्लावर सेलर है। द चाइल्ड सीम इररेजिस्टिबली ड्रॉन, इररेजिस्टिबल, अनेबल टू कंट्रोल योरसेल्फ, सहन न कर पाना। ओके, रुक, पेशेंस न रख पाना। ड्राउन, उसके अंदर खो जाना। ओके, और पूरी तरह से उन फूलों के रंगी बिरंगीन ओके कलर्स को देखकर वो बेचारा खो गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped. उस बास्केट के पास गया जहां पर वो पूरे फ्लावर्स का ढेर लगा हुआ है। एंड हाफ मर्मर्ड, आधा बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ाया? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों की माला चाहिए। लेकिन इस बार भी उसको आधा एक चीज अच्छे से पता है। What is he half known about the things of his parents? That his parents would refuse to buy him those flowers. क्यों? क्यों रिफ्यूज करेंगे? क्यों मना करेंगे? Because they would say that they were cheap. शायद उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे उसे? बड़े चीप क्वालिटी के फ्लावर से बेटा ऐसी चीजें खरीदता है तू। बेचारा मनी मन सोचता है, मनी मन अपने आप को मार देता है, पेरेंट्स को पूछता ही नहीं है। कितना मतलब रिस्पेक्ट भी करता है पेरेंट्स की और डरता भी उतना ही है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही अगेन मूव्ड ऑन। तीसरा व्यक्ति, a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक लकड़ी का या एक लोहे का पोल होता है जिसके ऊपर ऐसे छेद होते हैं, जिसके ऊपर ये बलून्स यस अंदर फिट किए होते हैं, और 4-5 अलग अलग कलर के बलून्स उस पोल में से यस फ्लाई मतलब डोरी से बंधे हुए होंगे, उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. और ये चमकीले रंग जो थे इनके, इनसे बेचारा जैसे रेनबो की ग्लोरी में, रेनबो की खूबसूरती में खो गया हो। And he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और overwhelming, बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ पूरी तरह से बेचारा क्या हो गया, उन बलून्स को खरीदने के लिए उसकी इच्छा व्यक्त हो गई। Because now this time, but he well knew, लेकिन इस बार उसे अच्छे से पूरी तरह से पता है कि अगर वो इन फूलों को छोड़ो, स्वीट्स को छोड़ो, अब बलून्स की बारी थी। बलून्स को अगर वो गलती से मांग बैठेगा तो उसके पेरेंट्स शायद उसे क्या कहेंगे इस बार? He was too old to play with such toys. क्या कह देंगे पेरेंट्स? कि अब वो इतना छोटा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है और वो ऐसे बलून्स के साथ खेलता ना बैठे, अब उसकी उम्र नहीं है बलून्स के साथ खेलने की। एंड सो ही अगेन वॉक्ड ऑन फार्दर। बेचारा वापस उसके पेरेंट्स के साथ आगे चल पड़ता है। फिर चौथा व्यक्ति, अ स्नेक चार्मर, सफेरा, ओके, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक व्हिच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। बास्केट के अंदर एक सांप है, कोबरा है, पूरा कॉइल करके बैठा हुआ है और वो आदमी फ्लूट बजा रहा है और कोबरे का जो ऊपर का सिर है ऐसा 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 मूव कर रहा है। ओके, जैसे जैसे वो यस फ्लूट बजा रहा है वैसे वैसे मूव हो रहा है। अब क्या लगा बच्चे को? इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंट लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। स्वैन की जैसे गर्दन होती वैसे इसकी गर्दन भी लंबी से ऐसे करके ऐसे फैला हुआ है। ठीक है। While the music stole into its invisible ears, और जो कान दिखते ही नहीं है सांप के, जो पूरी दुनिया को पता है कि सांप के कान होते नहीं है, लेकिन फिर भी राइटर ने क्या लिखा? इनविजिबल ईयर्स, जो दिखते नहीं है लेकिन शायद उसकी वाइब्रेशंस ही उसके लिए कान की तरह काम करती है, और उसके अंदर वो म्यूजिक जैसे अंदर यस एंटर होकर उस सांप को सुनाई दे रहा हो और वो नाच रहा था।
ओके और एकदम ब्यूटीफुल मैनर में उसने अपना सिर, जो हुड है, हुड बोलते हैं इसको, नाक के उसके फन को हुड बोलते हैं, और बड़े प्यार से ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा था. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. क्या करता है बच्चा? उसको पता है कि इस बार पूछना ही नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पहले से उसको फॉरबिड किया हुआ है, मना किया हुआ है, रेफ्यूज करके रखा हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ है. किस बात के लिए? ऐसा भयंकर म्यूजिक, कोर्स म्यूजिक, रफ म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं. जैसे कि स्नेक चार्मर्स बजाते हैं ना, ऐसे म्यूजिक को सुनना नहीं चाहिए बेटा. इसलिए बेचारा बिना पूछे बिना कुछ कहे अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है. 4 चीजों से यस उसे अच्छे से आइडिया थी कि उसके पेरेंट्स उसको इनमें से कोई चीज लेकर नहीं देंगे. एंड नाउ देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. ऐसा गोल जो झूला झूमता है ना, या फिर ऊपर से नीचे मेरी गो राउंड होता है, उसके अंदर लोग सब बैठे हुए थे, है ना. लकड़े के घोड़े, लकड़े के हाथी, लकड़े के जिराफ, लायन, टाइगर ऐसे बनाए होते हैं. इनके ऊपर सवार होकर जोर 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 ऐसा गोल गोल घूमते हैं. उसको राउंड अबाउट बोलते हैं. फुल स्विंग में था, एकदम जोर से घूम रहा था. सब लोग एकदम ऐसे टेढ़े होकर गोल 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 घूम रहे थे. Men, women and children carried away in a whirling motion. उसमें मैन थे, विमेन थी, बच्चे थे, और वो पूरे व्हर्लिंग मोशन में, सर्कुलेटरी मोशन में, एक साथ में उस झुंड में सब गोल गोल घूमे जा रहे थे. They shrieked, they shouted sharply and cried, और चिल्लाकर रो भी रहे थे. ओके रोना यानी कि आंसू नहीं बहा रहे थे. क्राइड मतलब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. With the dizzy laughter, बेहुदा, विचित्र, स्ट्रेंज टाइप का, बड़ा अजब गजब का लगता है. समथिंग वेरी एब्सर्ड वन. ओके एकदम भयंकर लगता है. ऐसे हंस रहे थे जैसे पागल पागल लोग हंस रहे हो, सबके सब पागल हो गए हो. चीख रहे थे चिल्ला चिल्ला कर, जोर जोर से, हाँ हूं करके, है ना. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली. बच्चा एकदम ध्यान से उनको ऐसे आंखें गोल 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 करके देख रहा है, कैसे चिल्ला रहे हैं ये सब. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. इस बार उसने फाइनल कर लिया था, दुनिया हो जाए. स्वीट मीट सेलर के बर्फी नहीं मांगी. दूसरा फ्लावर्स नहीं मांगे. तीसरा बलून्स भी नहीं मांगे मैंने. चौथा तो मुझे स्नेक चार्मर के पास उसकी बांसुरी को सुनने भी नहीं दिया. लेकिन अब बहुत हो गया, अब तो पूछ ही लेता हूं मैं, इस बार बिना डरे, चाहे वो हाँ बोले या ना बोले. और इसलिए उसके मुंह से एक सेंटेंस निकल गया. कौन सा? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, मुझे उस राउंड अबाउट में बैठना है, किसी भी हाल में मुझे उसके ऊपर झूला झूलना है. अब क्या हुआ देखते हैं. देयर वॉज नो रिप्लाई. बच्चे को कोई जवाब नहीं मिला. अब जवाब नहीं मिला मतलब इसका ये नहीं हुआ कि उसके पेरेंट्स गुस्से में थे या क्या थे, ऐसा नहीं है. उसने ये देखा कि जवाब नहीं मिला, किसी की आवाज नहीं आ रही है. He turns back and see his parents. उसके पेरेंट्स को देखने के लिए वो पीछे मुड़ता है. क्या हुआ? They were not there. उसके पेरेंट्स उसके पीछे थे ही नहीं, उसके सामने भी नहीं थे. दोनों साइड में देखता है घबरा के. But unfortunately, he did not see his mother, he did not see his father. They were not there. उसके पेरेंट्स शायद आगे बेधुंध होकर चल गए और आगे बढ़ चुके हैं, और बच्चा थोड़ा पीछे रह गया है. शायद पेरेंट्स को पीछे हाथ कर देखना चाहिए था, लेकिन उसके पहले बच्चा वहां से किसी और जगह पर चला गया. He looked behind. वापस वो पीछे मुड़कर देखता है कि शायद पीछे रह गए होंगे ज्यादा, लेकिन पीछे भी नहीं थे. और क्या हुआ? There was no sign of them. दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं दिख रहा था, और बच्चा बेचारा अकेला जैसा महसूस कर रहा था, अकेलापन जैसा महसूस कर रहा था. अब अकेला था, छोटा था. इस बार बेचारे ने डेयरिंग करके पूछा था कुछ तो.
लेकिन क्या उपयोग उस डेयरिंग की? जब उसने पूछा तो उस वक्त उसके पेरेंट्स नहीं थे, जब नहीं पूछा था तब पेरेंट्स साथ में थे। आखिर क्या होता है आगे? लेट अस सी इट। विल कीप द सीक्रेट and we'll continue the story in the next session. Thank you and have a nice day. Okay, and take care all of you. Bye. See you all of you.